and gentlemen, I join you today on a momentous occasion of India's cultural renaissance. Here on the banks of the sacred Saryu, once again in the holy city of Ayodhya, Bharat is set to reclaim its legacy. A 500-year-long wait, full of struggles and sacrifices, will come to an end as Lord Ram will return home. Just like his historic celebration of Diwali, when Lord Ram returned home from Vanvas, Ayodhya is set to relive the joy again. The Pran Pratishtha will not just usher in the era of Ram Rajya, but the rebuilding of Bharatvarsh itself. Take a look at this spectacular view of Ram Mandir as seen from space. These satellite images have been released by ISRO. It truly is world's envy and India's pride. The inner sanctum sanctorum, where Prime Minister Modi will be presiding over the Pran Pratishtha, is being decorated with rare flowers for a rare occasion. A team of pujaris led by Lakshmikant Dikshit will be leading the main rituals. Prime Minister will offer a lotus garland to Lord Ram, which will consist of 108 lotuses with Jai Shri Ram written on them. After the consecration ceremony, Ayodhya would be adorned with the radiant glow of 10 lakh diyas, transforming its landscape into a mesmerizing spectacle. Ram Jyoti will be lit at houses of common people, religious places and historic sites, and creating an ambience that symbolizes the divine presence of Lord Ram in Ayodhya. Prime Minister Modi has already embarked on an 11-day Anushthan and has been travelling along the Ramayana trail. Today he was at the Arichal Munnai in Tamil Nadu and paid floral tributes at the spot where Lord Ram is believed to have engineered a bridge to reach Lanka called the Ram Setu. Legend has it that this is the point from where Lord Ram started building the Ram Setu. Unfortunately, the dawn of Ram Rajya seems to have spooked the opposition and their echo chambers. The lawyer who represented the Muslim side in the Ayodhya case, Rajiv Dhawan, has said that Jai Shri Ram has been turned into a war cry. It has been weaponized. Congress's Udit Raj has added that this is the destruction of Bharat. Listen in. Nobody is against the temple. One is only against the politicization. The fact that the state has contributed finance, Nipen Mishra was a civil servant, a Hanuman Bhakt was made in charge. We are gradually going towards a Hindu Raj. And this hype is just totally against everything we stand for. I don't want to hear, as I heard as I entered the court, Jai Shri Ram. Are Jai Shri Ram is okay. But why make it a weapon? I see that there is a ploy in it, and he is moving temple to temple. And if they are claiming to get 400 plus, this is a beginning of destruction of Bharat. With the Prime Minister embarking on a southern sojourn ahead of the Pran Pratishtha, Rajniti over Ram Mandir has taken center stage. Union Minister Nirmala Sitharaman has alleged that the Congress DMK government has banned the telecast of the rituals in Ayodhya. She also claimed that anti-Hindu Sarkar in Tamil Nadu has stopped bhajans and prasadam in the name of Ram. Of course, the DMK once again has dismissed these claims as complete lies. I spoke with Union Minister Nirmala Sitharaman a little while back. Watch her scathing response. Let me then challenge the minister and also the government of Tamil Nadu. If indeed there's no order stopping people from viewing the Honorable Prime Minister and singing bhajans or reciting Ramayan, let them say so openly. Let them tell in temples that people can come and do their bhajans. Put a screen. You take the money from the Hindu devotees. You control the Hindu temples, and that is not even right. You take the monies from the contribution made from the Bhakta. Please establish a TV in the temple, a television screen, and openly say
we wouldn't have any objection and we would welcome Hindu devotees to go to the temple and watch the program which Honorable Prime Minister is doing. You are welcome to watch the live telecast. Say that positively. Don't hide behind bushes. So, ladies and gentlemen, with just hours counting down to the Pran Pratishtha, the legitimate question we are asking tonight: has Ram Rajya spooked Ram baiters? That's the question and that's the debate coming up on the other side. आज इन सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं आमी गमात्रा, ऑथर है, डॉक्टर आनंद रंगनाथन, राहुल ईश्वर भी मेरे साथ है, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और साई दीपक को कौन नहीं जानता। आचार्य जी, यहाँ बज रहे हैं भजन मेरे घर राम आए हैं। आज आप अयोध्या में आ गए हैं, राहुल गांधी जी को कहाँ भूल लाए हैं? धीरे धीरे सब यहीं आएंगे, क्योंकि राम के बिना किसी का कल्याण नहीं है। राम भारत की आत्मा है। राम के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और राम से जो छूट गया वो डूब गया, और जिसने राम का हाथ पकड़ लिया वो पार हो गया। तो बोलो जय जय सिया राम। आचार्य जी शायद आज मन बनाकर आए हैं कि कांग्रेस पार्टी उन्हें निष्कासित कर दे। क्यों हर्षवर्धन त्रिपाठी जी? आचार्य जी यहाँ कांग्रेस का चोला पहन के आए हैं कि राम का चोला पहन के आए हैं? जो भी कोई देखेगा आज क्या कहेगा कांग्रेस पार्टी में? नहीं नविका जी, सबसे पहले तो सबको राम राम। अयोध्या की इस धरती पर आचार्य जी उन्होंने कहा कि राम के बिना किसी का काम नहीं होने वाला। वो राम जो इस देश का सूत्र है, सार है, वो राम जो इस देश के प्राण है, वो राम जो इस देश के एक सूत्र में बांधने के तार हैं, उन राम के बिना किसी का जीवन तरने वाला नहीं है। और एक बात मैं कह दूं, आचार्य जी तो धर्म ध्वजा थामे हुए हैं, लेकिन इनके माथे पर तिलक, इनके माथे पर वो पगड़ी, इनकी ये वेशभूषा देखकर अगर कांग्रेस पार्टी को आचार्य जी से पीड़ा हो रही है तो ये पीड़ा राम के नाम से हो रही है, और ये पीड़ा बहुत गहरे जाने वाली है। कम से कम अवध के लोग तो इसको पसंद नहीं करेंगे। किसी भी स्थिति में अवध के लोगों को ये ठीक नहीं लग रहा है कि राहुल गांधी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त जितने नकारात्मक मुद्दे हैं, जितनी नकार वाली बातें हैं, वो सब बोलनी है, सब कुछ कहना है। बहुत बड़ी बात आपने कही हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। आचार्य जी, हम आपका यहाँ पर बहुत वेलकम करते हैं, आपको यहाँ स्वागत करते हैं क्योंकि कुछ ही घंटे बाकी हैं। लेकिन साई दीपक जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जंग छिड़ी है ऐसी जब से ये प्राण प्रतिष्ठा की तारीख आई है। कोई कहता है बीजेपी आरएसएस का ये समारोह है, और कोई कह रहा है जो तमिलनाडु में आज हो रहा है कि ट्रांसमिशन नहीं करेंगे, दिखाएंगे नहीं कि अयोध्या में क्या होगा। ये लोगों को राम से डर है या मोदी से डर है? जय श्री राम। पिछले 9 सालों से एक शब्द का यहाँ पे दुरुपयोग हो रहा है भारत के पॉलिटिक्स में। तो मैं आज जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगा, आप सारे भक्त हैं या नहीं? आप किसके भक्त हैं? राम के भक्त हैं? लोग यहाँ पे राम जी के लिए आए हैं और उनके लिए आए हैं जिन्होंने इस कार्य को साकार किया है। राम किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, लेकिन जो भी पॉलिटिकल पार्टी राम को नकारती है उसका अस्तित्व मिट जाएगा, ये आपके आंखों के सामने होगा, चाहे वो साउथ की हो या नॉर्थ की हो।
राम पूरे भारत के हैं और प्रधानमंत्री जी ने यह साबित कर दिया है, क्योंकि उन्होंने अयोध्या से पहले वे रामेश्वरम गए हैं और उन्होंने एक मैसेज भेजा है लोगों को कि आर्य द्रविड़ का यह पॉलिटिक्स नहीं चलेगा, नॉर्थ साउथ का यह पॉलिटिक्स नहीं चलेगा, हिंदी तमिल का यह पॉलिटिक्स नहीं चलेगा। आप भारतीय हैं, भारतीय रहेंगे, चाहे आप भारत के किसी भी प्रांत के हो। तो मेरे हिसाब से भक्त का जो शब्द है, उसका जो दुरुपयोग हुआ है पिछले 9 या 10 सालों में, उसको फिर से हमने साकार किया है, उसको एक मीनिंग दिया है। जय श्री राम। आनंद रंगनाथन जी, आपसे पूछना चाहूंगी, आप अयोध्या में आए हैं, अयोध्या का आपने ये माहौल देखा, ये वातावरण देखा, ये एटमॉस्फेयर देखा, यहाँ गुंजाइश है किसी को ये ना समझने की कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं? यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, पहले तो बता दीजिए, क्या चाहते हैं? राम समय से आ गए कि देरी हुई आने में? बहुत देर हुई। किसने देर करा दी राम को यहाँ आने में? आधे से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि विपक्षी दलों ने देर करा दी। तो आनंद रंगनाथन जी, ये बात क्या कांग्रेस की समझ में नहीं आ रही, डीएमके की समझ में नहीं आ रही, सपा के समझ में नहीं आ रही? ये जानकर अनजान है। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार मैं बोलना नहीं चाहता, सुनना चाहता हूं। जय श्री राम। और मंच पर आचार्य जी और संतों का, और जो बैठे हैं आचार्य जी, उनका बहुत बहुत प्रणाम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय साई सबका। नाविका जी ने जो प्रश्न पूछा मैं उसका अभी उत्तर देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सिविलाइजेशन भले ही बहुत पुरानी हो, लेकिन उसका उदय आज फिर हुआ है। हमारे लोग भले ही यंग हो, लेकिन वो भूले नहीं है। कोई आप ऐसा आदमी, आप सारे के सारे यंग हैं। राहुल गांधी जी से भी ज्यादा यंग हैं यहाँ पे लोग, लेकिन वो 500 साल की पीड़ा को नहीं भूले। यही सिविलाइजेशन है। सिर्फ यही डिफरेंस है सिविलाइजेशन में और एम्पायर में। एम्पायर्स गिरते हैं, बहुत एम्पायर्स आए, ब्रिटिश एम्पायर आया, ग्रीक एम्पायर आया, रोमन एम्पायर आया, कहाँ है आज वो? पर्शियन एम्पायर। लेकिन हिंदू सिविलाइजेशन आज तक जागी है, क्योंकि 500 साल पहले जो चीज हुई, उसके आगे चल के जो 20 पीढ़ियों ने जो राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद देखी, आज 21वीं पीढ़ी बाबरी मस्जिद की जगह राम जन्मभूमि और वहां पे मंदिर देख रही है। यही एक डिफरेंस है सिविलाइजेशन और एम्पायर में। और नाविका जी, जो आपने बात कही, मैं आपको ये बात बता दूं, कोई यहाँ पे आए या ना आए, आचार्य जी ने कहा एक ना एक दिन सबको आना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात और बता दूं, जिसकी यहाँ पे मस्जिद थी, जिसने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया था, उसने कहा था कि मैं काफिरों को और हिंदुओं को ठिकाने लगाने के लिए आया हूँ, इसलिए मैं गाजी हूँ। वो बाबर था, उसकी मजार पे 1959 में नेहरू जी गए, 1968 में इंदिरा जी गई, 1976 में राजीव जी गए, 2005 में राहुल जी गए, लेकिन वो चारों आज तक राम जन्म स्थान में नहीं आए। अब आचार्य जी, मैं क्या कहूं, मैं क्या करूं? मुझे आपसे ये सवाल पूछने पड़ते हैं कि जो बाबर की मजार पर चले जाते हैं, राम जन्मभूमि के द्वार क्यों नहीं आते? क्या परहेज है? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। एक बात और मैं कह देना चाहता हूं, नाविका जी, आपने मुझसे कहा कि मुझे निष्कासित किया जा सकता है। अरे मैं अपना राम के नाम पे सर कटाने को तैयार हूं, निष्कासन क्या चीज है? और अगर भगवान राम के नाम पर मेरा बलिदान होता है, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरा और कोई हो ही नहीं सकता। रंगनाथन जी, सवाल राजनीति का नहीं है, सवाल सरकारों का नहीं है। सरकारें आएंगी जाएंगी, सत्ता आएगी जाएगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन राम हमेशा थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे।
बड़ी झलक राम आ हमारी रही आस्था है। के आधार हैं। बड़ी झलक नाविका आ रही जी, है। राम हमारी अटल आस्था बिहारी के आधार वाजपेयी के हैं। स्टेटमेंट और नाविका जी, एक बात सुन लेना, मुझे कोई किसी दल से निष्कासित कर सकता है, लेकिन इस भारत की जनता के हृदय से निष्कासित नहीं कर सकता है। मुझे आपके दिल से निष्कासित नहीं कर सकता है। और सुनो, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बहुत सही कहा आपने। और जो लोग सवाल पूछते हैं कि ये साउथ के मंदिरों में क्यों जा रहे हैं प्रधानमंत्री, क्या ईवीएम साउथ से दबवाना चाहते हैं इस बार, आज मैं आपको अपने पैनल के अतिथियों से बताती हूँ। साई दीपक जी, आप कहाँ से आते हैं? मैं साउथ से आता हूँ, मैं हैदराबाद से हूँ। हैदराबाद से। हैदराबाद कहाँ है? साउथ में है। साई दीपक जी कहाँ है? राम जन्मभूमि पर है। आप कहाँ से हैं रंगनाथन जी? मेरे पिताजी पालाकाड से हैं, केरला में जो है, तमिलियन। मेरी माता जी पंजाबी थी, तो मैं एक तरह से मिश्रण हूं इस देश का। बहुत। दक्षिण और उत्तर को इससे भला कौन जोड़ सकता है, जैसे आनंद रंगनाथन जी जोड़ा। और मेरे साथ राहुल ईश्वर जी भी हैं। अब राहुल ईश्वर जी, मैं केरला से हूँ। आप केरला से हैं। अब ये तीनों जो हैं ये साउथ से आते हैं। लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री साउथ क्यों जाते हैं, वोट चाहिए। ये बात इनके समझ में क्यों नहीं आती कि राम का अस्तित्व जितना उत्तर भारत में है उससे कहीं ज्यादा दक्षिण भारत में भी है। जब अंग्रेजों ने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट खुला, उसे उसका टैगलाइन आसेतु हिमाचलम ही दिया। आसेतु हिमाचलम का मतलब हिमालय से राम सेतु तक। सो राम हमारे देश के कण कण में है। और शबरीमला मंदिर का नाम भी राम से ही आता है। राम और शबरी जो वनवासी है उससे ही आता है। तो राम का प्रभाव सभी जगह पर है। राम पॉलिटिक्स नहीं है, राम आत्मीयता है, राम नीति है। राम राज्य के बारे में सबसे बड़ा बताने वाला हमारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। वो सच्चे राम भक्त थे। जब अगर महात्मा गांधी आज यहाँ होते, महात्मा गांधी तो जरूर आते, मगर राहुल गांधी कहाँ है, सोनिया गांधी जी कहाँ है, यही एक प्रॉब्लम है। तो इसीलिए राम को पॉलिटिक्स के ऊपर से हमें देखना चाहिए। राम एक सिविलाइजेशन आइकन है, सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमान देश इंडोनेशिया में राम एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है। राम मोहम्मद जैसा कॉमन नाम है वहां का एयरलाइंस का नाम गरुड़ा इंडोनेशिया है। वहां राम एक बहुत इंपॉर्टेंट आइकन है। सबसे बड़ा रामायण फेस्टिवलों से एक वहां होता है। तो राम एक कल्चरल एशिया का, इंडिया का, भारत का एक कंट्रीब्यूशन है। इसे हम आदर कर देना चाहिए बियॉन्ड पॉलिटिक्स। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो लोग चाहते हैं कि राम की वजह से कहीं ना कहीं बीच में हमारे दीवारें खड़ा करें, शायद वो गलत चाहते हैं। और मेरे साथ हिस्टोरियन भी हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी आज कि ये राम जो है, ये इतने देशों में इनका अस्तित्व है, लेकिन भारत में प्रमाण देने पड़े, एविडेंस देना पड़ा, और 134 सालों की लड़ाई हुई जिसमें कोर्ट खेला गया। और राम हमारे इंडिपेंडेंस के, स्वतंत्रता के लगभग 75-76 सालों बाद अपनी जन्मभूमि में पहुंचे हैं। ये कौन सी मंशा है, ये कौन सा नैरेटिव है, ये कौन सी थिंकिंग है? जय श्री राम, जय जय श्री राम। आपका उत्तर दूं नाविका जी, उसके पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ। वाल्मीकि जी श्री राम को कहते हैं रामो विग्रहवान धर्मः। तो आज राजनीति की नहीं, राजधर्म की बात हो। जो राम के बुलावे से नहीं आए वो कभी ना आए, और जो आए हैं उन पे कृपा बनी रहे। तो सबसे पहले तो वो बात है। दूसरी बात ये है कि 500 वर्ष तक हमने श्री राम धाम की प्रतीक्षा करी है और संघर्ष किया है और प्रमाण भी दिए हैं। ये हिंदू संस्कृति और हिंदू मानसिकता के एक का प्रमाण देता है कि हम हमेशा से ही सहिष्णु रहे हैं और इस प्रश्न का भी उत्तर देते हैं। अब ये प्रश्न उठा क्यों? ये प्रश्न उठने का ये कारण है कि एक हिस्टोरियन लॉबी या डिस्टोरियन लॉबी रही है जिनके पास कोई प्रमाण थे ही नहीं।
जिन्होंने अपने कोर्ट के वक्तव्यों में ये कहा कि मैं जो भी कह रही हूँ या कह रहा हूँ इसका मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, मैं केवल अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। तो ये जो संघर्ष हुआ है, कोर्ट केस हुआ है, वो डिस्टोरियंस के केवल ओपिनियंस पे हुआ है। मंशा ये थी कि राम को भारत से अलग कर दे, ये कभी होने ही वाला नहीं था। देर ही क्यों ना हो, सत्यमेव जयते, और वो आज हो चुका है। जय श्री राम। बहुत सही कहा आपने आमी जी। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी, सवाल ये है कि यहाँ हम सब खड़े हैं, आचार्य जी भी खड़े हैं, हम सबको समझ आ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। हम सब साक्षी बनने वाले हैं एक ऐसे पल के जो शायद बहुतों को नसीब नहीं हुआ। कितने युग आए, कितने युग चले गए, लोग इच्छा करते रहे, लोग प्रार्थना करते रहे, लेकिन राम अपने जन्मभूमि पर आ नहीं पाए। आज जब वो लौट कर आ रहे हैं तो जो लोग ये निमंत्रण ठुकरा रहे हैं, क्या वो लोगों को समझ नहीं पा रहे हैं, मौके को समझ नहीं पा रहे हैं, या इस ऐतिहासिक पल को कम आंक रहे हैं? नविका जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, आपने जेएसआई, दीपक, आनंद रंगनाथन और राहुल ईश्वर से पूछा वो कहाँ के हैं। अयोध्या के लोगों, आप जान लीजिए, अगर 2 मलयाली नहीं होते ना तो राम मंदिर नहीं बनता। पहले थे के नायर और दूसरे थे के मोहम्मद। और जब हम कहते हैं इतिहासकार, तो बीबी लाल की अगुवाई में जो डायरेक्टर एएसआई थे के मोहम्मद अकेले मुस्लिम एएसआई के आर्कियोलॉजिस्ट थे। और वो कह रहे हैं कि इस देश के वामपंथी और इस्लामिस्ट इतिहासकारों ने अवध का और इस देश का प्राण हर लिया, इस आत्मा की हत्या कर दी उन लोगों ने। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो लोग कहते हैं, मैं इसको अक्सर दोहराता हूं, जिनके आराध्य, जिनके माँ बाप दरिद्र रह गए, वो कभी संपन्न नहीं हो सकते। राम को दरिद्र बनाकर आप भारत को विश्वगुरु बनाएंगे, इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। और मूर्खता वो कौन सी थी? वो था फ्रॉड सेकुलरिज्म, जिसको नेहरू जी ने बिना संविधान में डाले लागू किया और जिसको आपातकाल में इंदिरा गांधी ने संविधान में घुसाकर लागू किया। और मैं फिर से कह रहा हूं, अवध में आज ये प्रतिष्ठित अवसर देखने को मिल रहा है तो कोठारी बंधुओं की आत्मा भी कहीं घूम रही होगी। अगर आज ये अवसर देखने को मिल रहा है तो गोधरा में जो कार सेवक शहीद हो गए, बलिदान हो गए, उनकी भी आत्मा कहीं घूम रही होगी। देश के हर हिस्से से प्रयागराज, वाराणसी, इसके आगे ट्रेनें रोक दी गई थी और मुलायम सिंह यादव ने कहा था परिंदा पर नहीं मार सकता। हाईवे पे गड्ढे खोद दिए गए थे कि आप उस रास्ते से जा नहीं सकते। और वो 100 200 किलोमीटर चलकर इसी अयोध्या में कार सेवा के लिए जो लोग आए थे, उनको पता है राम हमारे प्राण हैं, राम हमारी आत्मा है। वो कहीं जाते नहीं है, लेकिन उनकी भव्यता तो हमें ही तय करनी होगी। हमारे राम दरिद्र नहीं हो सकते और हमारे राम की संपन्नता दुनिया में हमें विश्वगुरु के तौर पर प्रतिष्ठित करेगी। जो लोग नहीं आ रहे हैं दरिद्र होने वाले हैं, दरिद्र होने वाले हैं। आचार्य जी, राम के बिना कहीं न्याय हो सकता है? राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं, राम के बिना न्याय कहां? आपका माइक ऑन है, आप बोलें तो सही। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन है जिससे आप इस जनता को कन्विंस कर दें कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो सही है, तो आपका माइक चलेगा। देखिए नाविका जी, भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिलना सौभाग्य का विषय है। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, राम जन्मभूमि ट्रस्ट का मैं आजीवन जिंदगी की आखिरी सांस तक आभारी रहूंगा कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, निमंत्रण किया। अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, भगवान श्री राम के नाम की महिमा देखिए। हर्षवर्धन जी ने जो कहा, रंगनाथन जी ने जो कहा, ईश्वर जी ने जो कहा, आप जो कह रही हैं, राम के नाम की महिमा देखिए। भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण आना सौभाग्य की बात है, मैं ये बात कह रहा हूं। और जो इस निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं वो दुर्भाग्य का विषय है, ये भी मैं कह रहा हूं। अब राम के नाम की महिमा देखिएगा। राम का निमंत्रण जिन्होंने ठुकराया उनके नाम में भी राम है।
ये कितनी बड़ी बात है। सीताराम, जय जय सीताराम। उनके नाम में भी राम है। मैं राम जी से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे बेतालों के पापों की सजा हमें ना दे और इन्हें सद्बुद्धि दे। देश के लोकतंत्र के लिए एक विपक्ष की आवश्यकता होती है। मैं तमाम विपक्ष के नेताओं से कहना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ो, राम से मत लड़ो। आप बीजेपी से लड़ सकते हो, सनातन से नहीं लड़ सकते। आप बीजेपी से लड़ सकते हो, भारत से नहीं लड़ सकते। और राम भारत की आत्मा है, राम को परास्त नहीं किया जा सकता। जितनी जल्दी हो अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए राम के प्रति शरणागत होकर के अयोध्या आ जाओ। बहुत बहुत बढ़िया बात कही है आपने आचार्य जी। और साई दीपक जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या विपक्ष बीजेपी से लड़ते लड़ते राम और सनातन से भिड़ गया है? एक्चुअली पोजीशन जो है वो उल्टा है। विपक्ष हमेशा से सनातन से घृणा करता रहा है, क्योंकि भाजपा हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करती है। उनको भाजपा से तकलीफ है। अगर आप भारत की हिस्ट्री देखेंगे, पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखेंगे, ये ऐसा एक अनोखा हिस्ट्री है जहां पे इंडिपेंडेंट भारत की जो सबसे पहली सरकार थी, उसकी जो रिलेशनशिप है भारत की संस्कृति के साथ, वो विरोधाभास की रिलेशनशिप है। तो उनको बीजेपी से तकलीफ नहीं है, उनको भारत की संस्कृति से तकलीफ है। और जो भी उसके पक्ष में खड़ा होता है, उनको उससे घृणा होता है। ये मोदी जी थे या कोई और रहे, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी इस कार्य को संपन्न करता, उनको उससे तकलीफ होती। तो मेरा ये मानना है, विपक्ष की जो लड़ाई है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है, वो भारत की आत्मा के साथ है। और जो भी आतताई भारत की आत्मा के साथ लड़ने की कोशिश करता आ रहा है, वो हमेशा से हारा है। जब तक ये अपने आप को भारतीय नहीं मानते, जब तक ये अपने आप को इस संस्कृति के पैदावार नहीं मानते हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कोई और हो, इनको हार का सामना करते रहना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि ये बीजेपी और मोदी जी के बारे में नहीं है, ये राम के बारे में है। आनंद रंगनाथन जी, अगर विपक्ष भारतीयता के खिलाफ खड़ा हुआ है, तो फिर इतने सालों तक राज कैसे किया, इतने सालों तक सरकारें कैसे चलाई, इतने राज्यों में सरकारें कैसे चल रही हैं, ये इसको आप कैसे समझाएंगे? पहले तो नाविका जी, मैं जो आचार्य जी ने बात कही, मैं बहुत उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। एकदम दिल से बात कही। और शायद ये पहले ऐसे नेता होंगे जो कि बिना सीबीआई और ईडी के डर से बीजेपी ज्वाइन करें। पर नाविका जी, आपने जो बात कही विपक्ष का, मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर से कांग्रेस ने देश का मूड और देश का सेंटिमेंट नहीं समझा। ऐसी बात नहीं है कि सारे विपक्ष ने नहीं समझा। जिनको मैं छोटा मोदी कहता हूं, केजरीवाल, वो हर जगह नुक्कड़ पे आरतियां करवा रहे हैं, शोभा यात्रा निकलवा रहे हैं, सारे पाठ करवा रहे हैं। वो समझते हैं कि ये पॉलिटिक्स नहीं है। भले ही बीजेपी इसका कोट अनकोट फायदा उठा रही है, लेकिन कांग्रेस को किसने रोका था कि निमंत्रण पत्र दे घर घर जाके? कांग्रेस को किसने रोका कि एक एक घर जाए, चावल दे? कांग्रेस को बीजेपी से ये छीन लेना चाहिए था मुद्दा, क्योंकि ये उनका भी उतना ही हक था। और बीजेपी बैकफुट पे हो जाती। बीजेपी को समझ में नहीं आता कि हम करें क्या। कांग्रेस कहती है, राहुल कहता है हमारे भी राम है, हमें भी उतना ही हक है जितना आपको। लेकिन कांग्रेस ये नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस, जैसे साई ने कहा, वो मोदी से नफरत नहीं करती, वो हिंदुओं की आस्था से नफरत करती है। आस्था, जनता का क्या सवाल है? चलिए, जनता से आवाजें आ रही हैं, जनता का क्या सवाल है? आइए, आपका क्या सवाल है?
नाविका मैं आचार्य प्रमोद कृष्ण जी को प्रणाम करता हूं, क्योंकि जैसे राक्षसों में भी एक गुरु शुक्राचार्य थे, सभी संत तो कांग्रेस बीजेपी की तरफ है, लेकिन जैसे कांग्रेस में एक ही संत बचे थे, लगता है कांग्रेस ने इस विरोध में उन इतने बड़े महात्मा को भी त्याग कर दिया है। आचार्य जी, लोग आपकी हिम्मत की दाद दे रहे हैं। और किसका सवाल है? आपका क्या सवाल? मैं गुजरात भरूच डिस्ट्रिक्ट से अंकलेश्वर से आया हूँ, गुजरात से। मेरा सवाल है कि हमारे जो भगवान आराध्य देव रामचंद्र जी, उनकी किताबों में जो 70 साल से कांग्रेस सरकार ने वो पुस्तक में हमारे बच्चों को, हमारी पीढ़ी को वो उसके पठन में नहीं आया, हमें वो चाहिए पठन में। मुझे आपकी बात से आपत्ति है कि नेहरू जी गए कब्र पे, मजार पे, गांधी जी गए, इंदिरा जी गए, राहुल जी गए, वो अपने पूर्वजों के आने जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? राम उनके पूर्वज है ही नहीं है तो कहाँ जाएंगे वो? हम सनातनी हैं, हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, तो वो आते हैं यहाँ पर। वो अपने पूर्वजों की कब्र पर गए हैं तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, लेकिन साई दीपक जी, आपने लोगों को पूछा, जो लोगों ने कहा कि हमारे पाठ, हमारी हिस्ट्री कितनी डिस्टॉर्टेड है, इस पर कोई कॉन्स्पिरेसी थी या जानकर हमें ऐसी हिस्ट्री पढ़ाई गई और इस देश में हिंदू जो है वो 70 साल तक यूं ही बैठा रहा, लड़ाई उसने राम जन्मभूमि की लड़ी ही नहीं? आनंद और मैंने इस विषय पे बहुत बात किया है और हमारा ये मानना है कि भारत की जनता के साथ एक सोची समझी षड्यंत्र रची गई थी, जहां पे इनका ये स्ट्रैटेजी था कि इस पूरे सोसाइटी को, इस संस्कृति को ये सुप्त रखें, इसको सोए रखें ताकि ये जागरूक न हो कभी भी। जब आप एक सोसाइटी से कहते हैं कि आपके पुरखों ने हमेशा सिर्फ हार का सामना किया है और उनकी संस्कृति में एक क्षात्र भाव नहीं है, क्षत्रिय भाव नहीं है, वीरता नहीं है, तो आप उस सोसाइटी से क्या उम्मीद रखते हैं? भारत की हिस्ट्री के साथ जो छलावा हुआ है, ये किसी और स्वतंत्र मुल्क के साथ हुआ ही नहीं है, किसी और स्वतंत्र राष्ट्र के साथ हुआ ही नहीं है। बार बार हमने क्या किया है, गोरों को हमने जिम्मेदार ठहराया है हमारी हिस्ट्री के डिस्टॉर्शन के लिए, लेकिन उनके जाने के बाद 70 साल तक हमें जो हिस्ट्री पढ़ाई गई थी, ये भारतीयों ने की है। गोरे साहब तो चले गए, लेकिन उन्होंने भूरे साहब यहां पे छोड़ दिया। सो अकॉर्डिंग टू मी, हिस्ट्री को हमसे इसलिए दबाया गया था ताकि हम अयोध्या, काशी, मथुरा और 40,000 ऐसे जितने मंदिर हैं जो ऑक्यूपाइड साइट्स हैं, उनको हम वापस कभी ना मांगे। लोगों का ये मानना है कि ये जो सिलसिला है ये काशी और मथुरा के साथ खत्म हो जाएगा। मैं नहीं मानता। 40,000 और ऐसे मंदिर हैं जो पूरी तरह से ऑक्यूपाइड हैं, और जब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट चलता रहेगा तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। हमसे ये कहा जा रहा है कि आप अदालत में जाके अपने फेवर में एविडेंस भी नहीं रख सकते हैं। जो कार्य आपने 100 साल के लिए अयोध्या के लिए किया था, वो आप बाकी मंदिरों के लिए कर भी नहीं सकते हैं। अगर ये इस संस्कृति के साथ छलावा नहीं है तो क्या है? कांग्रेस इंडिपेंडेंस के बाद एटलीस्ट 40 साल कंटिन्यूअसली पावर में रही थी, और उस पूरे कार्यकाल में हिस्ट्री के संबंध में, मंदिरों के संबंध में उनके काम को आप देखें, अगर आप उसको लेके देखेंगे, मेरा तो ये मानना है दैट द कॉन्स्पिरेसी ऑफ द व्हाइट मैन continued along with the first rulers of this country, namely the Congress party, which is why it ties to my previous answer. उनकी घृणा मोदी के लिए नहीं है, उनकी घृणा भारतीयों के लिए है और हमारी संस्कृति के लिए है। भारतीयता से उनको प्रॉब्लम है। तो आनंद रंगनाथन, अगर अब हिंदू जागरण हो चुका है, यही तो डर है ओवैसी जैसे नेताओं को या उदित राज जैसे नेताओं को या समाजवादी पार्टी को, जो बार बार कहते हैं कि सेक्युलरिज्म का क्या होगा अगर आप अपने सारे मंदिर मानने लगे। तो ये जो लड़ाई है, जागरूकता है, ये कहां जाकर रुकेगी?
से पहले आनंद के बोलने से पहले मैं बोल दूंगा एक जवाब। सेक्युलरिज्म का क्या होगा? ये होगा। आचार्य जी चिंतित लग रहे हैं। अगर मैं चिंतित होता तो यहाँ आता। नाविका, मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। एक तो जैसे आपने कहा कि लोगों को डर क्यों है कि हिंदू जाग गया है। मेरी ये बात समझ में नहीं आती, डर क्यों है? हिंदू अभी तक प्रताड़ित था, वो अपनी राइट्स मांग रहा है, अपनी राइट्स, वो डिस्क्रिमिनेटेड था। ऐसा नहीं है कि वो अपीजमेंट मांग रहा है, कि वो कुछ एक्स्ट्रा मांग रहा है जो कि और लोगों को नहीं मिला। वो चीज मांग रहा है जो उसको नहीं मिली। तो ये डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो सकती है, मेरी ये बात समझ में नहीं आती। इसीलिए जो साई ने कहा, मैं भी वो कहना चाहूंगा। मैं एक सेंटेंस बोलूंगा और आप खुद देखिएगा कि सारे लोग उसका दूसरा सेंटेंस अपने आप बोलेंगे। क्यों बोलेंगे वो आप खुद समझ जाइएगा। अयोध्या तो झांकी है। अब आप ये सोचिए इन्होंने क्यों बोला। मैं बताता हूं क्यों बोला। तो लोग इसीलिए कहते हैं कि जय श्री राम एक वॉर क्राई है। ऐसा लगता है आप युद्ध बता रहे हैं। क्या जय श्री राम युद्ध का आह्वान है? न्याय का। नाविका, युद्ध तो नहीं, न्याय जी का। फिर सेक्युलरिज्म, अगर ये युद्ध का आह्वान है तो फिर ओवैसी जी डर रहे हैं, तो ये सही डर रहे हैं। ओवैसी जी को डरना चाहिए। बहुत हो चुका, उनकी दादागिरी बहुत हो चुकी। हम सहिष्णु रहे हैं, हम सहिष्णु हैं, हम सेक्युलर रह पाए हैं क्योंकि हम हिंदू बहुमूल राष्ट्र है। अगर हम हिंदू नहीं होते तो सेक्युलरिज्म की बात ही नहीं थी। आप हमारे नेबर्स को देख लो, है ना। तो ओवैसी जी प्लीज डरिए और समझिए, यही होने वाला है। राम आ चुके हैं, मथुरा और काशी में भी हम आएंगे। राम आ चुके हैं, कृष्ण जी की लड़ाई अभी बाकी है। राहुल ईश्वर, सेकुलर नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ, मगर हिंदुइज्म में प्लूरलिज्म है, इंक्लूसिविटी है। हमारे संविधान और संस्कार हमेशा एक हार्मनी से चलता है। महात्मा गांधी और सरदार पटेल के बाद हमें नेगेटिव सेकुलरिज्म पे गया, नेहरूवियन सेकुलरिज्म में गया। हमें एक पॉजिटिव प्लूरलिज्म होना चाहिए, हार्मनी होना चाहिए। मुसलमानों को डराने के लिए कोई जरूरत नहीं, मगर हिंदू तो जरूर जागना है। एक पॉजिटिव हिंदू, प्लूरलिस्टिक हिंदू एवेकनिंग इज पॉसिबल। मोदी जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबके राम, ऐसा एक राम बन सकता है, तो उसी पाथ में हमें चलना चाहिए। बहुत सही कहा। और यहाँ पूरी हवा में राममय हुई है अयोध्या। तो मैं पूछूंगी आचार्य जी, क्या ये एक इत्तेफाक है कि सोमनाथ मंदिर जब बन रहा था तब भी दिक्कत थी, आज राम जन्मभूमि में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तब भी दिक्कत है? ये सदियों से कांग्रेस को हिंदू धर्म, हिंदू भगवान और मंदिरों से दिक्कत है। ये सवाल जनता पूछ रही है आज। देखिए, ऐसी बात नहीं है। जब सोमनाथ का मंदिर बन रहा था तो भारत के गृह मंत्री सरदार पटेल वहां सबसे ज्यादा उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन मैं एक और सवाल का जवाब पहले देना चाहता हूं। जो आपने कहा कि क्या जय श्री राम युद्ध का उद्घोष है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हाँ, जय श्री राम युद्ध का उद्घोष है। लेकिन युद्ध किसके खिलाफ? बुराई के खिलाफ। युद्ध किसके खिलाफ? अधर्म के खिलाफ। युद्ध किसके खिलाफ? ये युद्ध जो है जय श्री राम का तलवार और तीर और बंदूक और AK-47 लेके युद्ध नहीं है। ये युद्ध है असत्य के खिलाफ, ये युद्ध है अंधकार के खिलाफ, ये युद्ध है सूडो सेकुलरिज्म के खिलाफ। ये सेकुलरिज्म के खिलाफ युद्ध नहीं है, ये सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के खिलाफ युद्ध है। और मैं कहना चाहता हूं कि सनातन ही सेकुलर है और सेकुलर ही सनातन है। सनातन से सेकुलर अलग नहीं है। हाँ, सो कॉल्ड सेकुलरिज्म और सूडो सेकुलरिज्म वो सनातन का हिस्सा नहीं है। तो ये युद्ध है, लेकिन ये असत्य अधर्म के खिलाफ युद्ध है। इसलिए मैं इस युद्ध में आपके साथ हूं। आचार्य जी इतनी तालियां हैं, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप इतना जोरदार पाठ यहाँ पढ़ा रहे हैं,
कांग्रेस में नहीं पढ़ाते? कांग्रेस में क्यों नहीं पढ़ाते ये सब? अरे नाविका जी, आप क्या बात कह रही हैं? महाभारत जब हुआ था, विदुर ने धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को बहुत पाठ पढ़ाया, माना ही नहीं। मैं क्या करूं? चलिए चलिए, अब सवाल और आ रहे हैं। आपका क्या सवाल है? सवाल नहीं है मेरा, बस आपसे ये कहना है, आपने कृष्ण जन्मभूमि और यूथ की बात की, तो 21वीं सदी का एक जागरूक हिंदू यूथ होने के नाते मैं बस ये कहना चाहूंगा कि अयोध्या हमारे संयम की गाथा थी, अयोध्या हमारे संयम की गाथा थी। कृष्ण जन्मभूमि हमारे वीरता की गाथा होंगी, और कृष्ण जन्मभूमि में हम इतना समय नहीं लगेगा। टाइम आ गया है कि हम नारे को चेंज करें। अब नारा होगा, कृष्ण कन्हैया हम आएंगे, माखन वही खिलाएंगे। बिल्कुल, कृष्ण जी माखन खिलाएंगे। वहाँ एक महिला से भी सवाल लेते हैं। My question is to Jai Sai Deepak ji. What is the significance of Shri Ram in our constitution? What is the significance of Shri Ram in our constitution? राम का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सिग्निफिकेंस है? हमारी संविधान की जो हिस्ट्री है, अगर आप उसको गौर से पढ़ेंगे, धर्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको पब्लिक मोरालिटी के साथ जोड़ दिया गया है, और फंडामेंटल ड्यूटीज का जो चैप्टर है, उस चैप्टर में राम, लक्ष्मण और सीता का उसमें चित्र आपको दिखेगा इन दी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। अधिकारों के चैप्टर में नहीं है, कर्तव्यों के चैप्टर में है। सो राम जो है, उनके बारे में बात करना या फिर उनके प्राण प्रतिष्ठा में पार्टिसिपेट करना, ये कभी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो नहीं सकता है, क्योंकि भारत की मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, वो धर्म ही है और धर्म रिलीजन नहीं है। मैं आपसे सिर्फ आई जस्ट वांट टू मेक वन पॉइंट। आचार्य जी ये कह रहे थे कि सेक्युलरिज्म के बारे में, कि सूडो सेक्युलरिज्म के खिलाफ ये एक लड़ाई है, ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ लड़ाई नहीं है। मेरा ये मानना है, सेक्युलरिज्म ऐसा एक टाइम बम है जो गोरे साहब यहां पे छोड़ के गए ताकि ये बार बार, हर बार हमारे खिलाफ फटता रहे। तो मैं सेक्युलरिज्म और सूडो सेक्युलरिज्म के बीच का जो अंतर है, मैं उसको मानता नहीं हूं किसी भी हालत में। ये मैंने पहले भी कहा है, सेक्युलरिज्म भारतीय संस्कृति का भाग नहीं है। हम पंथ निरपेक्ष हैं, हम धर्म निरपेक्ष नहीं है। पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता में अंतर है। जब आप पंथ निरपेक्ष होते हैं, आप मानते हैं कि आपका एक धर्म है, लेकिन आप शैव और वैष्णव के बीच में कोई चुनाव नहीं करेंगे। लेकिन अब जब आप कहते हैं कि अब धर्म निरपेक्ष है, आप कह रहे हैं कि आपका कोई परिचय नहीं है, आपकी कोई पहचान नहीं है। ये मैं कभी मान नहीं सकता। ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, अपने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स में इसका कोई बेसिस था ही नहीं। मेरे हिसाब से इसका जो इजाद हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद नेहरूवियन गवर्नमेंट के अंदर ये हुआ है। सो आई सर्टनली डिसएग्री विद आचार्य जी रेस्पेक्टफुली। आचार्य जी से हर्षवर्धन जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा ना कि अगर आप अपने माँ बाप, अपने माता पिता को सिर्फ इस डर से सम्मान करना छोड़ दें, उनकी फोटो लगाना छोड़ दें, घर से निकलते उनका पांव छूना छोड़ दें कि पड़ोसी कहता है नहीं भैया तुम्हारे माँ बाप की पूजा इस तरह से करते हो, हमको बुरा लगता है, ये ठीक है क्या? यही फ्रॉड सेकुलरिज्म है, यही फ्रॉड सेकुलरिज्म है। राम के देश में, राम के जन्म स्थान पर राम का मंदिर इसलिए मत बनाओ कि बाबर के कुछ लोगों को बुरा लगता है, जिस बाबर का ना इस देश से लेना देना, ना इस जमीन से लेना देना। और सेकुलरिज्म फ्रॉड आइडिया है। ये देश धर्म सापेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता। यहां हर हिंदू धर्म भीरू है, डरता है चींटी नहीं दब जाए, डरता है गाय को डंडा नहीं लग जाए, डरता है कुत्ता भी आया तो खाना खा के जाए, डरता है साधु आया तो भूखा लौट गया तो हमारे पूर्वज हमको क्या कहेंगे, उसको आप बता रहे धर्म निरपेक्ष हो जाओ। ये बेशर्मी की इंतहा है जिसका नाम सेकुलरिज्म है। ये फ्रॉड सेकुलरिज्म खत्म होना चाहिए। और आज अयोध्या में हम सब हैं। कल अयोध्या में एक नई सुबह होगी। बस कुछ ही घंटे रह गए हैं, अब कुछ ही घंटे रह गए हैं। इंतजार 500 सालों का खत्म हुआ। हमारे घर राम आएंगे, और राम जब आ रहे हैं हमारे घर तो भाव क्या है? मैं इस डायस पे जितने भी हमारे माननीय गेस्ट हैं से पूछना चाहूंगी,
बहुत संक्षेप में, बस कुछ शब्दों में भाव क्या है बता दें आज आपके मन में। अयोध्या का माहौल एब्सोल्युटली इलेक्ट्रीफाइंग है। ये एक वंस इन ए सेंचुरी अपॉर्चुनिटी है, वंस इन मेनी सेंचुरीज अपॉर्चुनिटी है। इसे एक राम राज्य, एक इंक्लूसिव हार्मोनियस प्लूरल राज्य बन ये जाए। बहुत सारे सेंटेंस हो गए। आनंद रंगनाथन, आपको संक्षेप में बोलते हुए डर लगता है क्योंकि आप कभी भी संक्षेप नहीं बोलते, लेकिन आज बोलना पड़ेगा, इम्तिहान है आपका। नाविका जी देखिए, पीछे हमारे वो चल रहा था, वो उसको ध्यान दीजिए लिरिक्स पे। ये नहीं कि हिंदुओं का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सिर्फ 1 बिलियन हिंदूज के लिए जय श्री राम नहीं है, सारे भारतीयों 1.4 बिलियन के लिए है, जो कि हमारे 250 मिलियन मुसलमान हैं, उनके हिंदू एंसेस्टर्स के लिए भी राम बने। बहुत सही कहा। जैसा दीपक जी, आपके मन में क्या भाव है? मंदिर वही बन गया है। आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी, भाव बताइए, भाव। आचार्य जी, नाविका, आचार्य जी को सुन के मोदी जी कह रहे हैं बस कर पगले रुलाएगा क्या? आचार्य जी, देखिए, मंदिर का जो फैसला है, मंदिर जो बन रहा है, ये अदालत के फैसले से बन रहा है। लेकिन अगर इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होता तो ये मंदिर का फैसला नहीं होता। बहुत बड़ी बात आपने कह दी। मुझे मिनिस्ट्री लगता है डिस्कस कर ले, मिनिस्ट्री डिस्कस कर ले। मुझे राम की शरण अच्छी लगती है। मिनिस्ट्री आपको मुबारक। अमी जी, भाव बस इतना है, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। त्रिपाठी जी, देखिए, मैं तो अवध का ही हूँ, तो हमारे लिए तो बस 2 लाइनें हैं, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। और दूसरी लाइन है, हर घर में जब बच्चा आता है तो हम कहते हैं ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। बहुत है, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। अभी इसके लिए इंतजार करिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कल प्राण प्रतिष्ठा का दिन है और आप सबको बहुत बहुत बधाई। अयोध्या में आज राम जन्मभूमि पर रामलला गर्भगृह में पहुंचेंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और हम सब साक्षी होंगे इस महान घड़ी के। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम हमारे अतिथि जो यहाँ स्टेज पर हैं, इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अयोध्या की जनता के लिए जय श्री राम।